Hello, my dear students. I welcome you all in my class Learn English with Bhavna Mishra Pandey. Today we will do question answers of the chapter Journey to the End of the Earth by Tishani Doshi. So, question number 1. What was the name of that research vessel used for Antarctica expedition? Antarctica expedition के लिए जो research vessel use किया था, what was that name? So, the name of that research vessel was the Academic Shokalski. उसका name था Academic Shokalski. Question number 2. From where the journey students on ice begin? कहाँ से वो journey शुरू हुई थी? The journey began 13.09 degrees north of the equator in Madras. मद्रास से start हुई थी and involved crossing 9 time zones. उसमें से 9 time zones से वो cross हुए थे. Time zones क्या है? A range of longitudes where a common standard time is used. Then 6 checkpoints, 3 water bodies and at least as many ecospheres. इन सबको क्रॉस करके they reached to Antarctica. How were the Himalayas formed according to the author? Author के according Himalayas कैसे form हुई? So Himalayas were formed by a break in the Gondwana supercontinent. So what is Gondwana supercontinent? ये एक geographical term है. It means a hypothetical landmass in the southern hemisphere. Next question is, what is phytoplankton? ये phytoplankton क्या है? It is the autotrophic component. Autotrophic component का means है self-feeding grass type है ये of the plankton community and a key part of ocean, seas and freshwater basin ecosystems. Microscopic grasses of the sea that nourish and sustain the entire southern ocean food chain. This is called phytoplankton. Let's see what's there in the next question. What does the author compare stretching and running of crab and seals to? किससे compare करता है? The author compares stretching and running of crab of entering seals to stray dogs. Stray dogs से compare करता है. Why is phytoplankton necessary for the survival of biodiversity in Antarctica? तो Antarctica की biodiversity के लिए phytoplankton जो grass है ये क्यों compulsory है? So this is necessary for the survival of biodiversity in Antarctica because it nourish करती है and sustains means support करती है entire southern food chain. पूरी जो सदर्न हेमिस्फीयर की फूड चेन है उसको सस्टेन करती है, सपोर्ट करती है. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लाइव्स ऑफ किस किस के लिए रिस्पॉन्सिबल है? वाटर एनिमल्स, birds of that region and global carbon cycle. Let's see what's there in next question. So next question is, what was the author's first reaction on reaching Antarctica and why? So what was the reaction of the narrator? On reaching Antarctica, the author's first reaction was, this is like walking into a ping pong ball. वो क्या कहती हैं कि ये कैसा है? पिंग पोंग बॉल जैसा. Because there are no trees, humans or buildings. वहाँ पे ऐसा कोई भी human interference नहीं है. Which program was the author a part of on his expedition to Antarctica? Why was the program successful? तो कौन सा प्रोग्राम था ऑथर जिसकी पार्ट है? तो दैट प्रोग्राम वॉज स्टूडेंट्स ऑन आइस हेडेड बाय कौन थे? जियोफ ग्रीन. ही वॉज अ कैनेडियन. इट इज सक्सेसफुल बिकॉज इट इज अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस. क्योंकि ये एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था. Next question. Why does the author think that Antarctica is the right place to study the human race past, present and future? ऑथर ने ऐसा क्यों कहा है? तिशानी दोषी ऐसा क्यों कहती हैं कि एंटार्क्टिका एक ऐसा प्लेस है अगर हम जिसको स्टडी कर लें तो हम अपने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सबके बारे में जान सकते हैं. So she says that
The author thinks that Antarctica is the right place to study the human race, past, present and future because there is no human population. वहाँ पे human population नहीं है. That's why it is completely pure. और वो क्या है? बहुत ज़्यादा pure है, pristine है. World geological history is trapped here. यहाँ पे पूरी वर्ल्ड की जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री है वो बनी है, यहाँ पे ट्रैप हुई है. देयर आर नो ट्रीज एंड ह्यूमन मेकर्स. यहाँ पे सब कुछ क्या है? कोई भी आर्टिफिशियलिटी नहीं है. सब कुछ क्या है? विदाउट ह्यूमंस के सब कुछ है, मीन सब कुछ प्योर है. डिस्क्राइब द एंटार्क्टिका एटमोस्फियर एज एक्सपीरियंस्ड बाय द ऑथर. वहाँ का एटमोस्फियर कैसा है? एज डिस्क्राइब्ड बाय द ऑथर. सो अंटार्कटिका इज द कोल्डेस्ट. कैसा प्लेस है? बहुत कोल्ड, ड्राइएस्ट एंड विंडिएस्ट इन द वर्ल्ड. अबाउट 90% ऑफ द अर्थ्स टोटल आइस इज हियर. यहाँ पे क्या है? पूरे वर्ल्ड की 90% जो आइस है, आइस शीट्स के रूप में, ग्लेशियर्स के रूप में, आइसबर्ग्स के रूप में यहीं पे प्रेजेंट है. अ लिटिल चेंज इन एनवायरनमेंट हियर कैन हैव अ बिग इफेक्ट. अगर थोड़ा सा भी चेंज एनवायरनमेंट में होता है तो उसका यहाँ पे इफेक्ट होता है, क्योंकि उसके लिए आइसबर्ग्स और आइस शीट्स हैं वो मेल्ट होनी शुरू हो जाती हैं और हमारे इकोसिस्टम पे उसका इफेक्ट पड़ता है. हियर द इकोसिस्टम इज वेरी सिंपल. यहाँ का बहुत ही छोटा सा इकोसिस्टम है, फाइटोप्लैंक्टन वाला. आई टोल्ड यू बिफोर. इन एंटार्क्टिका नो ह्यूमन मेकर्स, नो ट्रीज, नो बिल्डिंग्स आर देयर. सो what's there in next question? Let's see. The world geological history is trapped in Antarctica. How the study of this region useful to us? तो जो ह्यूमन हिस्ट्री है वो यहीं पे ट्रैप हुई है. ये इस रीजन की स्टडी हमारे लिए कैसे यूजफुल है? द स्टडी ऑफ एंटार्क्टिका इज यूजफुल टू अस. इट होल्ड्स इन इट्स आइस कोर्स 500,000 year old कार्बन रिकॉर्ड्स ट्रैप्ड इन इट्स लेयर्स ऑफ आइस. क्योंकि इसकी जो आइस है वहाँ की जो लेयर्स हैं उसमें क्या है? बहुत पुराने 500,000 year old के कार्बन रिकॉर्ड्स प्रेजेंट हैं. इट एग्जिस्टेड व्हेन देयर वर नो ह्यूमन बींग्स. जब ह्यूमन बींग्स का एग्जिस्टेंस नहीं था उससे भी पहले के रिकॉर्ड्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं. Mammals started existing after dinosaurs become extinct. और जो डायनासोर्स थे अब जो कि वो नहीं है उससे पहले की ये है. Which happened once the landmass separated. और उससे पहले लैंड मासेस का सेपरेशन हुआ था, वो सेग्रीगेट हुए थे. जैसा अब हम हमारे ग्लोब में सारी कॉन्टिनेंट्स को और कंट्रीज को डिफरेंट पाते हैं, वैसा पहले नहीं था. सो वो सारी चीज़ें हमको कहाँ मिलती हैं? एंटार्क्टिका में. Thousands of species, flora and fauna flourished here. यहाँ का जो फ्लोरा एंड फौना है, वनस्पति और वो सब कुछ है, यहाँ पे बहुत डिफरेंट टाइप की है. थाउजेंड्स ऑफ स्पीशीज उसकी मिलती हैं, फ्लोरा एंड फौना की. इट वॉज द सेंटर ऑफ द गोंडवाना सुपर कॉन्टिनेंट. वी ऑलरेडी हैव टॉक्ड अबाउट इट. अ हाइपोथेटिकल लैंड मास इन द सदर्न हेमिस्फीयर. What are Geoff Green's reason for including high school students in the students on ice expedition? तो जियोफ ग्रीन ने ऐसा कौन सा रीजन था जिसकी वजह से हाई स्कूल स्टूडेंट्स को यहाँ पे इस एक्सपेडिशन के लिए चूज किया? क्या रीजन था? जियोफ ग्रीन took high school students on an expedition to one end to the earth to make them realize the impact that human intervention could have on nature. बच्चों को यहाँ पे इन्वॉल्व करने का रीज़न ये था क्योंकि दे आर द फ्यूचर पॉलिसी मेकर्स टू एक्सपीरियंस हाउ डिफिकल्ट इट वुड बी टू सस्टेन लाइफ विद द राइजिंग टेम्परेचर्स. क्योंकि बच्चे जो है वही क्या है, बड़े होकर के क्या बनेंगे? हमारे फ्यूचर पॉलिसी मेकर्स बनेंगे. वो क्या करेंगे? अब जो वो कोई भी काम करेंगे, कोई भी पॉलिसी क्रिएट करेंगे तो छोटे से छोटा काम भी उनको ये पता चलेगा कि इससे क्या होता है, हमारा जो सिस्टम है वो पूरा चेंज हो जाता है. नाउअडेज व्हाट ह्यूमंस आर डूइंग, व्हाट वी आर डूइंग, हम फॉसिल फ्यूल्स बर्न कर रहे हैं, उससे कार्बन की एक लेयर बनती है, एक ब्लैंकेट बन जाता है जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती है. सो चिल्ड्रन को वहाँ पे लेके जाने का मेन मोटो ये था ताकि वो कोई भी काम करें किसको देख करके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग वो काम करें. सो ही वॉन्टेड देम टू सी द मेल्टिंग आइस शेल्व्स. वो चाहते थे कि वो आइस शीट्स जो हैं वो मेल्ट होती हैं.
दे कुड एस्टिमेट, वो अनुमान लगा सके, वो गेस कर सके द ट्रबल दैट मैनकाइंड वॉज हेडेड टू, और हमारा जो मैनकाइंड है, पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी है, हमारी जो रेस है ह्यूमन बींग्स की, वो क्या हो रही है, धीरे धीरे एंड ऑफ द अर्थ की तरफ जा रही है। तो हम क्या करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को यूज करके उसको उस खतरे पे जाने से, उन डेंजर से बचा लें। टेक केयर ऑफ स्मॉल थिंग्स एंड द बिग थिंग्स विल टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स, छोटी चीज़ों का ध्यान रखो, बड़ी चीज़ें अपने आप ही सुधर जाएंगी। What is the relevance of this statement in the context of the Antarctic environment? तो इस statement का क्या relevance है? The statement holds great importance in the context of Antarctica environment. क्या इसका relevance है? बहुत ज़्यादा important है ये। फॉर इंस्टेंस, अगर हम एक एग्जाम्पल के रूप में देखें, द फाइटोप्लैंक्टन्स इन द रीजन सर्व एज फूड फॉर मरीन बर्ड एंड एनिमल्स। जो फाइटोप्लैंक्टन जो ग्रास है, ऑटोट्रॉपिक सेल्फ फीडिंग जो ग्रास है, वो क्या करती है, एक फूड चेन का काम करती है बर्ड्स एंड एनिमल्स के लिए। द डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर अफेक्ट्स द फाइटोप्लैंक्टन्स। जो ये ओजोन लेयर है, ये क्या हो रही है, धीरे धीरे ये डिप्लीट हो रही है, खत्म हो रही है, ठीक है। मतलब ओजोन लेयर जो है चारों तरफ, उसमें छेद बन रहा है, होल बन रहा है, उसका डिप्लीशन हो रहा है, और इसकी वजह से फाइटोप्लैंक्टन्स की जो लाइफ है वो इफेक्ट करती है। दिस कैन ऑब्स्ट्रक्ट द एक्सिस्टेंस ऑफ मरीन लाइफ, और मरीन लाइफ में जितने भी जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं, बर्ड्स हैं, और जो भी और हैं मरीन एक्वेटिक लाइफ में, उन सबको नुकसान पहुंचता है, उनके एग्जिस्टेंस को एक खतरा पहुंचता है। सो इफ द प्रोसेस कैरीड ऑन बाय दीज स्मॉल ग्रासेस इज टेकन केयर ऑफ, तो अगर ये प्रोसेस ढंग से चलेगा, द प्रोसेस ऑफ बिगर एनिमल्स एंड बर्ड्स कैन बी टेकन केयर ऑफ। तो अगर ये फाइटोप्लैंक्टन वाला जो सिस्टम है ये स्मूथली चलेगा, तो क्या होगा, बड़े एनिमल्स और बर्ड्स भी ढंग से सर्वाइव कर पाएंगे। Next question is, the world's geological history is trapped in Antarctica. How is the study of this region useful to us? ये पूरी इसकी स्टडी जो है एंटार्क्टिका की हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है? The geological phenomena of separation of land masses into various continents and water bodies almost 650 million years ago marks the beginning of the human race on this earth. इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 650 मिलियन ईयर्स पहले जो सेग्रीगेशन हुआ था, कॉन्टिनेंट्स, वाटर बॉडीज, कंट्रीज का जो सेग्रीगेशन हुआ था, हमको उसके बारे में नॉलेज मिलती है। मैमल्स स्टार्टेड एग्जिस्टिंग आफ्टर डायनासोर्स बिकेम एक्सटिंक्ट, और डायनासोर्स का एक्सटिंक्शन के बारे में पता चलता है, विच हैपेंड वंस द लैंड मासेस सेपरेटेड। और क्या हुआ था, लैंड मास जो थे वो सेपरेट हुए थे। तो हमको एंटार्क्टिका से जियोलॉजिकल हिस्ट्री के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशंस मिलती हैं, इसलिए ये रीज़न हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। सो स्टूडेंट्स, बाय बाय, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। कीप रीडिंग, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू सो मच।